Welcome everyone to this divine space of divine souls. Those who have come first time to this space, just let me give you a brief introduction about Healing Touch World. Healing Touch World is a company which provides healing using different various modalities, which are not only easy to use but very beneficial also. We conduct various courses and workshops also on the same. Healing Touch World is not only a healing center, but help people to know their inner self by understanding their innate personality, their life purpose, and goals towards their journey in this life. And our tagline is know and heal yourself, your life at your finger. Under this umbrella of Healing Touch World, Golden Sunrise is the group which was formed during lockdown, like to help people, giving them distance Reiki healing. And during this pandemic, a lot of people needed that, so we provided them. But now it's grown up with many healers and with many healing sessions and trainings are given for free over here. This is a group of healers and healies growing, helping each other, healing each other, a divine group with all the divine people. So let's connect today with one of the, healing member of our Golden Sunrise group. So today with us we have Anju Grover. Come, let's connect with her. So today we have one of our very precious member of Golden Sunrise Group, a healer and a healy both. So let's welcome Anju Grover. Welcome Anju Grover for this interview and giving me this Thank you, opportunity Jyoti. to take your interview. So let me give you brief about Anju. Anju is a teacher by profession, a maths teacher, and interest in knowledge of numerology. Actually, this is where we got connected also. She's very active, all time active, dedicated in attending all our sessions, mantras, meditations. Whatever we used to take, she used to be available for those sessions. In fact, she would arrange other schedule of hers to attend these sessions. And when it comes to her teaching, she is a powerhouse and a problem solver for her students. This is what she has been hearing also, and she did share many of the things which her kids gave her during this Teachers' Day. It was wonderful, she actually brings magic in the life of her Actually, yes. students, and all known to her. So, Anju, I would like you to share about your journey, like how your journey has been. Were you in teacher from a very young age itself, or you got into teaching later? How did you become a teacher? First of all, thank you, Jyoti ji, for considering me the part of this group. First of all, as you are asking about my teaching journey, yes, I got into this profession very soon just because of some health issues of my father. And then only I stepped into this. Later, I get to know this is only my passion. And that was by chance I went into this profession. But हाँ अब पैशन बन चुका है एंड आई फील गुड while टीचिंग ऑल्सो. और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इस प्रोफेशन में नहीं गई होती तो क्या ही कर रही होती. तो हाँ, अच्छा लगता है कि मैं अपने सही ट्रैक पे चल रही हूँ. तो टीचिंग, यस, दिस इज वेरी ट्रू कि प्रॉब्लम सॉल्वर प्रो. आई गॉट द title from my old students this time on the Yeah. Teachers' Day. Actually, some other title was there, but they decided to give this to me. I was also very very happy by getting that only. जब बच्चे कुछ बताते हैं, then only we get to know कि yes, we are having this capability. I Sometimes we think this is don't a even right title for you, because when you shared your actually, childhood journey also, there also you were a problem solver. actually If yes. you remember, you told me about how your mom and dad will, ठीक है अंजू को बोल दो, अंजू कर लेगी. Isn't that so? हाँ, ट्रू. ये लाइन हमेशा रहती थी कि हाँ, जो काम अटकेगा वो अंजू कर लेगी. तो उसी ने मुझे लाइफ जर्नी पे इतना स्मूथ बनाया. और कब कैसे इतने साल निकल गए मुझे पता ही नहीं लगा. बीच बीच में कभी ऐसा जरूर लगता था कि अरे इतने इतने साल बीत गए उम्र के, अभी भी कुछ रह गया. अरे ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया. लाइफ बीतती जा रही है और बहुत कुछ रह गया सीखने को. पूरा सीख नहीं पाई, उम्र खत्म हो रही है. तब ऐसा लगता था ये भी सीख लो, ये भी सीख लो. ऐसे करते करते जब न्यूमरोलॉजी का मैंने
इसके दौरान कोरोना के टाइम पे न्यूरोलॉजी जब हाँ ज्वाइन किया, तो ऐसा लगता था कि सब काम खत्म करो और अपने सेशन के लिए बैठ जाओ। इतना इंटरेस्ट दोबारा स्टडीज में आना जायज था। शायद मैं मैथ टीचर हूँ इसलिए मुझे नंबर्स में इतना इंटरेस्ट आ रहा था, पता नहीं क्यों, बट आई वॉज वेरी हैप्पी एट दैट टाइम। या कि कहीं ना कहीं बहुत आपका जल्दी ये से काम खत्म न्यूरोलॉजी करना और अपने सेशन लेना अपनी क्लासेस के थ्रू ही हम, इसी जर्नी के थ्रू हम ज्योति जी से जुड़े। शी इज एक्चुअली एन एंजल फॉर अस। मैं तो इनको ज्योति जी एंजल ही कहती हूँ, मेरे लिए तो ये परफेक्ट है इनके लिए। हाँ, आपने ही मेरा नाम आप कभी ज्योति बुलाते नहीं, ज्योति एंजल बुलाते हैं मुझे। तो मेरे को और कुछ समझ ही नहीं आता। मेरे को तो ये ऐसा लगता है कि अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम हुई, लेट्स टॉक टू ज्योति जी, आई वुड बी गेटिंग द सॉल्यूशन फ्रॉम देयर ओनली। मुझे कहीं भी कोई भी विचार नहीं आता, आपसे बात करने का मन करता है बस। ऐसे ही मेरे को एक बचपन में एक मेरी मैम थी, मैथ्स टीचर, वो मुझे बहुत प्रेज किया करती थी 6 स्टैंडर्ड में। तो उस टाइम पे मेरा क्या हुआ था, एक पेपर में बहुत तबीयत खराब थी, मैं थोड़ा सा लेट गई थी। मैम कह रही थी अगर अंजू पेपर नहीं देखी तो नंबर कहाँ से आएंगे। तो उस पेपर में आउट ऑफ 100 मेरे 113 मार्क्स आए थे। हमने पेपर लेके 100 आउट ऑफ 100 दिया था मुझे। वो टीचर मेरे माइंड में जैसे है ना, सेम वही जगह ज्योति जी ने ली हुई है मेरी। तो कहीं यू ना आर कहीं अ आप ट्रू एक हीलर। गोल्डन सनराइज जो आपने बनाया, थैंक यू फॉर दैट। थैंक्स अ लॉट। हम एक लिमिट रखते हैं नॉलेज की, बट यू आर अनलिमिटेड। लिमिटलेस नॉलेज आपके पास है। हम उसका बेनिफिट भी लेते रहते हैं बीच बीच में, आपकी नॉलेज बटोरते रहते हैं, अपनी झोलियां भरते रहते हैं। एंड वी फील वेरी गुड। आई तो एक्चुअली फील वेरी सेटिस्फाइड व्हेन आई टॉक टू यू। जब भी दिल बेचैन होता है मुझे आपकी याद आती है। नहीं, आप रहे हैं, मुझे हमेशा एक्टिव मेंबर रहे हैं, मुझे पता है। लाइक आप खुल के अपने प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते थे, कि आप रेडी रहते थे कि ठीक है, मुझे इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। एक्चुअली सही नाम है आपके लिए, प्रॉब्लम सॉल्व। बिल क्योंकि थैंक सेशंस में यू। भी आप वैसे ही रहते थे। आप लोगों की तरह हिचकिचाहट नहीं थी आप में। आप ठीक है, प्रॉब्लम बताते थे, फिर सॉल्यूशंस डिस्कस होते थे एंड आपका सॉल्यूशन हम बताते थे। मुझे काफी याद है आपकी चीजें, जो चीजें बताई आपको इमीडिएट करते भी थे उनपे। तो वो चीज हमने हाँ, काफी मैंने देखी हमेशा है। किया है, जो आपने बताया मैंने हमेशा उसको किया है लाइफ में अडेप्ट। और मुझे मंत्रा यही सेशन में कहूँ। भी आ गए एंड यू लाइक हम लोग एग्जैक्ट। सिर्फ चलो आके बैठे, बट यू विल लाइक प्रॉपर, यू विल क्रिएट दैट एनवायरनमेंट ऑल्सो आसपास अपने। वेरी नाइस, लाइक सो एक्चुअली हाउ वर दैट योर टाइम वी एक्सपीरियंसेस? टू यूज। मेरा एक्सपीरियंस तो मैम बैंग ऑन रहा है, 100% से भी अबव जाके रहा है एक्सपीरियंस। तभी मैं आज तक कनेक्टेड हूँ इससे। और गोल्डन सनराइज में तो बहुत कुछ मिलता है हमें। बहुत हीलर्स हैं यहाँ पे एक्चुअली, जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कई बार ऐसा लगता है फ्री में सबकी सर्विसेज लेते जा रहे हैं, यहाँ बोझ तो नहीं ले रहे। बट हाँ, हर देने बार वाले के लिए कनेक्ट लेना होके वाला होना चाहिए ना। हर बार कनेक्ट होके एक दिल को जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, यहीं आके मिलता है मुझे तो। हर थोड़े दिन में ऐसा लगता है एक बार कॉल कर ली जाए या बात कर ली जाए, चाहे चैट के थ्रू ही कर ली जाए, बट हाँ, दैट ओनली गिव्स मी द सेटिस्फेक्शन। ये एनर्जी ऐसी है गोल्डन सनराइज की, कि हम सारे लोग कनेक्टेड रह रहे हैं किसी न किसी चीजें हाँ, से। कोई दे रहा है तो कोई ले रहा है, कोई ले रहा है तो कोई दे रहा है। लाइक हाँ। ऐसा नहीं है कि कोई एक सिर्फ एक ही तरफ से हवा आ रही है, नहीं। इट्स लाइक फ्री फ्लोइंग ऑफ वाटर हो रहा है यहाँ पे। सबका देना और लेना बहुत अच्छे से हो रहा है। तो ये मत सोचो कि आपने अपने सर पे नहीं, आपने भी बहुत कुछ दिया है इस ग्रुप को। एंड आपका एक्टिवनेस जो हो रहा है वो लोगों को मोटिवेट करता है, बाकी लोगों को भी करके। एंड आप ऑफ कोर्स इधर से सीख के आपने कितने लोगों की लाइफ बनाई है। मुझे पता है न्यूमरोलॉजी का भी आप देखते थे कि ठीक है, जिसके लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा था तो इमीडिएटली आप उसका केस लेके आते थे, हाँ, डिस्कस करते थे। हाँ, वो तो या किया है। न्यूमरोलॉजी का बेनिफिट लोगों को बहुत दिया है, हमने चाहे उससे कुछ कमाया नहीं कमाया, लेकिन हाँ ये है कि जिसको भी सॉल्यूशन दिया है दे ऑल गॉट सेटिस्फाइड। तो वही एक सेटिस्फेक्शन देता था। इट्स ओके, पैसा अपनी तरफ है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। बट ये है कि किसी की अगर जर्नी में हम उसका कुछ हेल्प कर सकें तो दैट्स गुड। अभी 2 इयर्स बैक ही ऐसा हुआ था, मेरी भाभी की एक कलीग थी,
उनका मतलब हम्म। पूरी गृहस्थी बिल्कुल टूटने वाली थी। उन्होंने कुछ पूछा उसके बारे में मुझसे, तो मैंने उनको कुछ सजेस्ट किया था, मैं दिसंबर आते आते तक ये कर लो। और वो तब से आज तक वो उनके बारे में बताया था ना, दीदी आप ही बताओ, वो आज तक बिल्कुल लाइफ ट्रैक उसका बिल्कुल ठीक हो गया, जो आपने बताया था बिल्कुल वर्क कर रहा है। मुझे तो आप ही बताओ। मैं नहीं जाऊंगी कहीं, मैंने कहा तुमने मुझे पंडित बना दिया पूरा। नहीं है, ये जादू है। और मेरे ख्याल से आपको न्यूमरोलॉजी और करना चाहिए, आपका नंबरों के साथ वैसे भी रिश्ता बहुत अच्छा है। हाँ, हाँ सच में है। भगवान ने ही जोड़ रखा है मेरे साथ नंबरों का भी रिश्ता। हाँ, क्योंकि है कनेक्शन आपका काफी अच्छा है। आप करते भी बहुत लाइक अच्छे से, दिल से पूरा उसको फुल 100% देते हो आप। सो इसलिए रिजल्ट्स भी दिखते हैं लोगों को काफी अच्छा। सो आई वुड सजेस्ट आप कंटिन्यू ये करते रहें, लाइक श्योर ज्योति एंड जी, ऑफ कोर्स थैंक और भी यू। मोडालिटीज को भी आप इन्वॉल्व कीजिए अपने इसमें। सो हम्म। वो एक बोलते हैं और बेनिफिट हो जाएगा चीजों में, है ना। ट्रू, आप आई वुड बी थिंकिंग अबाउट दिस थिंग ऑल्सो। आपका सजेशन तो हम 100% सर आंखों पर। और कोई ऐसा कुछ इंसिडेंट रहा होगा आपकी लाइफ का, जो एक गेम चेंजिंग आपको कुछ लगा हुआ, कुछ चीजें ऐसे हुई होंगी लाइफ में जो विच यू वुड लाइक टू शेयर विद अवर व्यूअर्स। ऐसा तो मेरे को तो अपनी लाइफ ऐसे लगी जैसे एक बिल्कुल स्मूथ लाइफ चल गई। तो दुनिया कहती है उतार चढ़ा हुआ है, मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि कहीं इतने ज्यादा उतार चढ़ा हुआ है। कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ लाइफ में ऊंचा नीचे, बट हमने उसको पार किया। तो अब आज आपके साथ कनेक्ट होके पता लगा कि हाँ ये उतार चढ़ाव थे, बट मुझे हमेशा अपनी लाइफ स्मूथ ही लगी, ये आराम से चलने वाली लाइफ है। इजीली मैंने कवर किया सब कुछ, हर्डल्स को पार किया। हाँ, ठीक है, भगवान ने जो दिया हमने उसको खत्म किया लाइफ में और आगे बढ़े। मेरे गुड। लिए तो यही है कि बस हर्डल्स को हर्डल्स की तरह मत देखो, और कीप फाइंडिंग आउट द अदर वे। उसका सिक्के का कहते हैं ना, दो पहलू होते हैं। सॉल्यूशन के बारे में हमेशा सोचो। अगर हम सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं तो वो प्रॉब्लम्स हमें इतना सब परेशान कर ही नहीं सकती। तो हम अब दूसरे पाथ पे चले जाते हैं, और मे भी कई बार वो सॉल्यूशंस दूसरों को भी हेल्प कर देते हैं। हमारा तो सॉल्यूशन हो ही रहा है प्रॉब्लम का, साथ ही साथ उस जर्नी में सॉल्व करने में दूसरे लोग भी जब कई बार जुड़ जाते हैं तो उनकी भी हेल्प हो जाती है। मे बी वो प्रॉब्लम आई इसलिए हो कि अपनी भी सॉल्यूशन निकालो और दूसरों की भी हेल्प करो। तो बहुत बार हुआ है ऐसा मेरे साथ। मैं तो बस यही कहती हूँ, छोटी प्रॉब्लम हो या बड़ी प्रॉब्लम हो, बस उसको प्रॉब्लम को मत देखो, उसका सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दो, तो डेफिनेटली लाइफ पाथ सबका स्मूथ हो जाएगा। मैं चाहूंगी अपने व्यूअर्स को कि ये पॉइंट नोट किया जाए। क्योंकि आप देख रहे हो कि ऐसे नहीं कि इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए, बट देखो किस तरह से मुस्कुराते हुए उन चीजों को वो हैंडल करते गई हैं इजीली। लाइक है, हाँ सही कह रहे हैं आप, हर्डल्स आती हैं लाइफ में, बट उन हाँ, सॉल्यूशन पे ध्यान दो तो रास्ता निकल जाता है। क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि अपने हर आप निकल प्रॉब्लम में ही जाए। सॉल्यूशन है, तो अगर सॉल्यूशन को हाँ, देखोगे तो निकल ही जाओगे उससे। तो वही काफी कहते हैं ना, भगवान ने कुछ प्रॉब्लम दी है तो कुछ सोच के ही दी होगी। काफी सॉल्यूशन पे ध्यान रखो, डेफिनेटली लाइफ पाथ स्मूथ हो जाएगा। तो आप ऐसे मैथ्स टीचर ही थे शुरू से ही, लाइक या बेसिकली तो मैंने कॉमर्स से एजुकेशन किया है ज्योति जी, बट बाय चांस मैं मैथ्स टीचर बन गई। मैंने स्कूल जब ज्वाइन किया था तो एलकेजी यूकेजी मुझे क्लासेस मिली थी उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम मैं ग्रेजुएशन कर ही रही थी। अच्छा। तो एक दिन अचानक ही एकदम डायरेक्टर सर मेरे पास आए। बहुत बड़ा स्कूल नहीं था, छोटा सा था। मैंने वहां अपना सरनेम भी रिवील नहीं किया था, क्योंकि मेरे भैया को वो अच्छे से जानते थे, तो मैं नहीं चाहती थी कि उनके नाम से मुझे जॉब मिले। तो कुछ टाइम के बाद उनको पता लगा ये पाहवाओं की बेटी है। तो उन्होंने मेरे से ऐसे ही पूछा कि आप 8th स्टैंडर्ड को मैथ करा दोगे। मैंने कहा हाँ मैं करा दूंगी। उस टाइम तक ऐसा कुछ नहीं था, बट हाँ मेरी आदत थी हर बात के लिए हाँ बोलने की, मैं करा दूंगी। बाकी घुसने के बाद देखती थी कि इसके लिए क्या प्रॉब्लम आएगी, वो मैं देख लूंगी। मैंने कहा हाँ, मैं करा दूंगी। बस वो दिन था, कभी मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। 8th में उस टाइम में बोर्ड हुआ करता था, तो मेरी क्लास में लोएस्ट मार्क्स मैथ्स में 62 गए थे। सर ने उसके बाद मेरी सैलरी भी डबल से भी ज्यादा कर दी थी। सिर्फ 700 रुपये मैं लिया करती थी, और उन्होंने मेरे को उसके बाद सीधा 2000 दिया था। ओ,
फिर उसके बाद पढ़ाते पढ़ाते कब मैं मैथ्स टीचर बन गई, ऐसा लगता था बाकी सब्जेक्ट से पढ़ाना मैथ्स इजी है। जो पढ़ाओ तो फिर उसमें इंटरेस्ट भी आ जाता है, फिर तो मैं कनेक्ट ही होती गई मैथ से। वेरी नाइस, लाइक अच्छा लगा आपका सुन के, लाइक कि सोचा नहीं लेकिन कर दिया, एंड हाँ, बस एक्शन इज सोचा नहीं था इम्पोर्टेंट। बिल्कुल भी। उन्होंने अचानक पूछा, बस मैंने हाँ बोला और वहीं से मैं मैथ टीचर बनती ही चली गई। चलो, वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा आपकी ये जर्नी सुन के, एंड आपका कनेक्शन जो गोल्डन सनराइज के साथ रहा है, थैंक यू काफी ज्योति अच्छा जी, रहा है। आपसे जुड़ के तो सनराइज ने हमें सन की तरह राइज होना सिखाया। हम यही चाहेंगे कि आप राइज होते रहें इसी तरह से। आप और क्या थैंक यू चाहेंगे इस गोल्डन सनराइज से? कुछ आपकी अपेक्षा है, लाइक या क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप इस गोल्डन सनराइज के साथ? कुछ और एक्सपेक्टेशंस है, या आप कुछ सजेशंस आपके और हैं तो आप वो भी दे सकते हैं हमें। सजेशंस यही हैं कि बस कि जो जो भी सेशंस हो वो रेगुलरिटी पे हो जाए। कि कई बार होते हैं, कई बार बीच में बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, तो कुछ रेगुलर सेशंस होने चाहिए जिसमें कई बार अच्छी अच्छी चीजें हमें भी पता चलती हैं विच वी आर नॉट इवन अवेयर अबाउट। जैसे लिप्पी जी ने बीच में कुछ सेशंस लिए थे, उन्होंने जो नॉलेज दी थी मुझे हम्म। लाइफ में मतलब कभी सुनने को भी नहीं मिला था। ऐसी ऐसी उन्होंने चीजें बताई थी। पूजा जी के साथ हम कनेक्ट हुए, उन्होंने भी सेशंस जो लिए। इवन आपकी तो बात ही मैं क्या कहूँ। आपने तो बहुत कुछ दिया है, बहुत ऐसी चीजें जो हमने कहीं ना सुनी ना एक्सपीरियंस की, वो सब हमने यहाँ आके गेन किया। बट सजेशन यही है सिर्फ कि जो चीज हो कुछ रेगुलर बेसिस पे हो, ताकि हमारी झोली भरती ही चली जाए सनराइज से। हमारी कोशिश वही है, बट दुनिया की इतनी सारी चीजों में वो हो ही नहीं जाता कनेक्शन, क्योंकि हाँ, सब कोशिश रहती है कि सबके टाइमिंग को एडजस्ट करें, एंड क्योंकि कुछ और हम लोग के ग्रुप में ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ इधर के ही लोग हैं, कुछ इंडिया के भी हाँ, हैं, सब अब्रॉड मिले के जुले। भी हैं, अलग अलग हाँ, स्टेट्स के हैं। डिफरेंट वो टाइमिंग्स हो थोड़ा जाते। सबका मैच करते करते थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, बट कोशिश करेंगे हम और भी कुछ रेगुलर चीजें स्टार्ट करने का प्लानिंग में है, तो वो इनकॉर्पोरेट करेंगे। आप जैसे लोग और हेल्पफुल रहते रहेंगे हमारे साथ, तो हम चीजों को डाल पाएंगे। श्योर ज्योति जी, वी आर ऑलवेज देयर। आप अगर हैं तो हम भी पीछे ही है। बहुत बहुत अच्छा लगा अंजू जी आपसे बात करके, थैंक्स अ लॉट ज्योति जी, थैंक यू। and really thank you very much for giving your time and sharing this all your wonderful experiences with us, and I'm thankful to the universe also to giving me this opportunity to take your interview. डेफिनेटली आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू द यूनिवर्स हु हैज कनेक्टेड अस ऑल हियर। मैं Either दो we लाइन कहना always met चाहूंगी। on Zoom, still we are connected somewhere. Yeah. तो आपकी एंजल आपके लिए दो लाइन कहना चाहते हैं, आप इसी तरह मुस्कुराते रहो, अपनी मुस्कुराहट को बरकरार रखें, Oh, आप अपनी इस बच्चों और नंबरों की दुनिया में महकते रहें, और गोल्डन thank you, Jyoti सनराइज ji. पर Thank अपना you. विश्वास और प्यार बनाए रखें। Sure. Thank you, Jyoti ji. Thanks a lot. और अपने व्यूअर्स के लिए आई वुड टेल यू, keep watching this our divine space with divine souls. You will keep meeting all these divine souls like her. More healers and healers of Golden Sunrise will be connecting to you also. Continue being a part of this channel. Like, share, and subscribe to our channel. Thanks a lot, everyone. Thank you, and thank you, Anju ji, for connecting with us. Thanks a lot. Thank you, Jyoti ji. Thanks a lot.